Hello students, in the last class we have studied about herbarium techniques and botanical gardens. We have learned about different botanical gardens present in India and outside India. Today we will discuss about flora, and after flora we will study about different types of keys which are very useful for identification purpose. So let's start the class. So what is flora? Actually, the total number of plant species found in which area is known as flora, or you can say the sum total of all number of species found in which area is known as flora. For example, if we have to study about Varanasi flora, we have to know about the total number of species present in Varanasi district. Or suppose we have to find flora of BHU campus, so we may enlist the total number of species found in BHU campus. The total number of plant species found in which area is known as flora. Flora is the total number of plant species found in which area. Actually, flora refers to the specific account of plants of a specific area, and it is generally used for identification purpose. So flora is useful for identification purpose of plants. They also provide keys and description of plants. Although the primary purpose of flora is identification of plant species, however, flora also provides different information about local name of plant. It may be written as vernacular name. After local name, it also provides its distribution. It also provides correct names, and some other uses of different plants are also provided by studying flora. So that's all about flora. Now, just make a heading. Keys. What are keys? In your syllabus it is mentioned you have to learn about single access key and
multi-access keys, single access and multi-access keys. Actually, key is an artificial device which is utilized for, which are used for analytical purpose, in which a choice is provided, और ये जो चॉइस प्रोवाइडेड होते हैं उसमें से एक जो कैरेक्टर होता है, उसमें से एक कैरेक्टर इन विच वन कैरेक्टर इज एक्सेप्टेड while the other one is rejected. The other character will be, other choice will be rejected. Now, parts of a key. The major part of a key is known as couplet. Couplet is nothing, it is a single pair of contradictory character. Single pair of contradictory character is known as couplet. तो सिंगल पेयर कहने का मतलब है कि दो स्टेटमेंट होंगे और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे. ईच स्टेटमेंट, दूसरा जो पार्ट है उसे हम कहते हैं लीड. ईच स्टेटमेंट ऑफ अ couplet is called as lead. So lead is the statement, and जो भी leads होते हैं, जब भी आप की बनाएंगे आपको ध्यान में रखना है कि जो भी हम स्टेटमेंट का सिलेक्शन करेंगे वो बेस्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होने चाहिए. बेस्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कहने का मतलब है कि पेटल्स प्रेजेंट है, पेटल्स एब्सेंट है, उसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए. तो लीड्स का जो सिलेक्शन होता है, इट मस्ट बी बेस्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. बेस्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होना चाहिए. नाउ सेकेंडरी की कैरेक्टर. सेकेंडरी की कैरेक्टर सेकेंडरी की कैरेक्टर क्या है? दोज कैरेक्टर्स followed by leads are known as secondary key character. So these are the some basic points about key. Now we will easily understand it with examples. So example के बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. Then how to make key, how to read a key,
सिंगल एसेस की और मल्टी एसेस की। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल एसेस की। सिंगल एसेस की, सिंगल एसेस की, इट्स ऑल्सो नोन एज dichotomous key, dichotomous key, sequential key, pathway key, या इसे ही कहते हैं एनालिटिकल की। So these are the some alternative names of single access key. Now some points. These keys consist of single pair of characters known as couplet and statements of each couplet is known as lead. इसमें क्या होता है, both leads are numbered and begin with the same word. सेम वर्ड से दोनों लीड्स स्टार्ट होने चाहिए। सिंगल एसेस की और डाइकोटोमस की इज ऑफ टू टाइप्स। इसमें दो है, देखिए। पहला है इंडेंटेड की और दूसरा है ब्रैकेट की। इंडेंटेड की में क्या होता है, इंडेंट मीन्स क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जैसे ये बोर्ड है, आप देख रहे हैं, तो इधर वाला जो किनारा है ये लेफ्ट मार्जिन हो गया, इस साइड राइट मार्जिन हो गया। इसे ही हम क्या कहते हैं, इंडेंट कहते हैं। लेफ्ट मार्जिन से कितना स्पेस रहेगा और राइट मार्जिन से कितना स्पेस रहेगा, इसे ही हम इंडेंट कहते हैं। और लिखने का पैटर्न भी बिल्कुल वैसे ही होता है। दो मेन कैरेक्टर जो रहेंगे वो एक ही स्पेस से स्टार्ट होंगे, फिर उसके जो सब कैरेक्टर्स है वो थोड़ी दूरी से स्टार्ट होंगे। हम एक एग्जांपल देने जा रहे हैं, उससे आपको आसानी से समझ में आएगा। सो इन दिस एग्जांपल, identification of 5 genera of family Ranunculaceae is as। पांचों जेनरा के पहले हम नाम लिख लेंगे। Ranunculus, Clematis, Delphinium, Aquilegia, and one more is
तो ये 5 जेनरा हैं और इन सभी ये सभी दे ऑल बिलोंग्स टू फैमिली रेननकुलेसी बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और वो कैसे हम जान पाएंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन पांचों प्लांट को? हाउ विल वी आइडेंटिफाई? बाय मेकिंग की और बाय रीडिंग की। तो लिखने का पैटर्न ऐसा होगा, कोई भी मेन कैरेक्टर जो कि बेस्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो आप ले सकते हैं। तो यहां पर हम ले रहे हैं कैरेक्टर फ्रूट का। पहला जो हमने कैरेक्टर लिया है वो है फ्रूट अ ग्रुप ऑफ एकीन्स। ग्रुप ऑफ एकीन इज द टाइप ऑफ फ्रूट, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर में। अ ग्रुप ऑफ एकीन्स और फ्लावर्स कैसे हैं? अनस्पर्ड फ्लावर्स। स्पर भी पढ़ाए थे आप लोगों को। स्पर क्या है? इट इज एनी आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट सेपल और पेटल, या कभी कभी दोनों पे पाया जाता है। कोई भी आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर अगर सेपल या पेटल पर पाया जाता है इट विल बी कंसिडर्ड एज स्पर। तो ऐसा फ्रूट जो कि ग्रुप ऑफ एकीन था, फ्लावर्स कैसे थे? अनस्पर्ड फ्लावर्स थे। अब इसी का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हम लिखेंगे फ्रूट अ ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स। देखिए दोनों सेम मार्जिन से हम लिख रहे हैं। यही लिखने में इसकी ध्यान आपको रखना है कि लेफ्ट मार्जिन से जो इंडेंट होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। फ्रूट अ ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स और यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे, ऊपर बिंदी और नीचे कॉमा। फ्लावर्स कैसे हैं? यहाँ पर स्पर्ड फ्लावर्स पाए जा रहे हैं। ये दो बेस्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया, यानी कि ये दोनों क्या हो गए? ये कपलेट हो गया। ये दोनों क्या है? कपलेट है। और एक लीड ये है और दूसरा लीड ये है। अब दूसरा कैरेक्टर लेना है तो हम लेंगे पेटल का कैरेक्टर ले लेते हैं। अब जैसे पेटल का कैरेक्टर जब आप लेंगे तो थोड़ा मार्जिन क्या कर देंगे आप? चेंज कर देंगे। तो एक कैरेक्टर हम ले लेते हैं पेटल्स एब्सेंट। अब इसका जैसे पेटल्स एब्सेंट लिख दिए तो पेटल्स एब्सेंट का बेस्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होगा? पेटल्स प्रेजेंट। तो इसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हम नीचे यहां लिख देंगे। मार्जिन आप देख लीजिए बिल्कुल बराबर होना चाहिए। पेटल्स प्रेजेंट। अब जब पेटल एब्सेंट हो गया फ्लावर में तो उसका जो सेपल वाला पार्ट है उससे हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्योंकि वहां पेटल तो एब्सेंट है। हाँ, जब आप पांचों ये सभी जेनरा को जब आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि कौन से प्लांट में ऐसा फ्लावर पाया जा रहा है जिसमें कि पेटल्स एब्सेंट है। आप लोग फैमिली रेननकुलेसी पहले भी पढ़ चुके हैं। रेननकुलस ही इन पांचों में ऐसा जेनरा है जिसमें कि पेटल्स क्या होते हैं? इंटायरली एब्सेंट। तो पेटल्स एब्सेंट, उसके बाद फ्रूट अ ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स स्पर्ड फ्लावर्स, पेटल्स एब्सेंट हो गया और पेटल्स प्रेजेंट हो गया। तो जब पेटल्स एब्सेंट हो गया अब थोड़ा सा मार्जिन और लेकर के हम यहाँ पर सेपल्स का कैरेक्टर लिखेंगे। तो सेपल्स दो तरीके के हो गए। एक जगह था यूजुअली 4 और इसका बेस्ट हो गया सेपल्स यूजुअली 5। दोनों में सेपल्स पाए जा रहे हैं, इसमें 4 है और इसमें 5।
सेमीकोलन देंगे और दूसरा कैरेक्टर लिखेंगे। इन्वॉल्कर, सेपल्स यूजुअली फोर के बाद दूसरा कैरेक्टर लिखेंगे इन्वॉल्कर एब्सेंट। अब यहां एब्सेंट हो गया तो इसका बेस्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होगा? इन्वॉल्कर प्रेजेंट। ये एक तैयार हो गया। अब सेपल्स यहां पर यूजुअली फोर है और इन्वॉल्कर एब्सेंट है, वो एक ही प्लांट होता है जिसका नाम है, ऐसे डॉटेड लाइन से आप दिखा देंगे, क्लेमेटिस। तो क्लेमेटिस के फ्लावर में अगर आप देखेंगे तो सेपल्स पेटल्स एब्सेंट होते हैं और सेपल्स आर यूजुअली फोर एंड इन्वॉल्कर इज एब्सेंट। ऐसा प्लांट जिसमें सेपल्स 5 है और इन्वॉल्कर प्रेजेंट है, उसका एक ही एग्जांपल है एनीमोन। अब इनमें पेटल एब्सेंट हो गया, पेटल प्रेजेंट का कैरेक्टर लिखिए। अभी बताएंगे किसमें पाया जाएगा, रेननकुलस। रेननकुलस हो गया। अब दूसरा कैरेक्टर, दूसरा जो पहला कपलेट था उसका जो सेकेंड लीड है, फ्रूट अ ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स एंड स्पर्ड फ्लावर्स। इसमें भी स्पर्ड है तो स्पर का कैरेक्टर हम एक सब कैरेक्टर ले सकते हैं, मार्जिन से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस लेकर के लिखेंगे। स्पर्स कितने पाए जा रहे हैं? 5। अगर स्पर्स 5 है तो डेफिनेटली फ्लावर कैसा होगा? रेगुलर होगा। फ्लावर कैसा होगा? रेगुलर होगा। फ्लावर रेगुलर और इस पर कितने? 5। किसमें पाया जाएगा? एक्विलेजिया। नेक्स्ट और लास्ट, स्पर्स पाए जा रहे हैं 1 और इस पर अगर 1 पाया जा रहा है तो फ्लावर कैसा होगा? इरेगुलर होगा। फ्लावर्स इरेगुलर, नाम लिख देंगे, एक ही है, Delphinium. So in this way we have identified all the 5 genera, Ranunculus, Clematis, Delphinium, Aquilegia and Anemone of the family Ranunculaceae on the basis of indented key. तो indented key के अकॉर्डिंग हमने इसे क्या कर लिया? आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ कम टू द ब्रैकेट। इरेज कर लेते हैं। ब्रैकेट की में ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ कैरेक्टर्स। यहां पर क्या होगा? ब्रैकेट की में क्या होता है कि 2 couplets are always next to each other। अभी जबकि इंडेंटेड में ऐसा नहीं था, पेटल एब्सेंट ऊपर हमने लिखा था, प्रेजेंट वाला कैरेक्टर नीचे लिखा था, तो कपलेट एक ही था लेकिन दोनों लीड क्या थे? एक दूसरे से दूरी पर थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। ब्रैकेट की में बोथ जितने भी कपलेट्स होंगे, 2 couplets are always next to each other। तो कैसे सेपरेट करेंगे? हम वहां पर क्या बना देंगे? ब्रैकेट का यूज करते हैं। देखिए कैसे किया जाता है। कैरेक्टर ले लेते हैं, और यहां पर जब लाइन एंड करती है तो
वहां पर नंबरिंग भी हम लोग करते हैं, तो नंबर का यूज करना है और ब्रैकेट। पहला हमने कैरेक्टर ले लिया फ्रूट, अ ग्रुप ऑफ एकीन्स, और फ्लावर्स कैसे थे? फ्रूट अ ग्रुप ऑफ एकीन्स और फ्लावर्स थे अनस्पर्ड, अनस्पर्ड फ्लावर्स। अब इसका दूसरा जो लीड है वो हम यहीं पर लिखेंगे, क्या हो जाएगा? बोलिए, फ्रूट अ ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल हो गया, इसमें एकीन हो गया, यहाँ अनस्पर्ड फ्लावर था, यहाँ पर स्पर्ड फ्लावर है। अनस्पर्ड, तो दोनों को साथ में लिख दिया हमने। अब एक ही कपलेट के दोनों पार्ट हैं, इसलिए इसको एक ही नंबर आप देंगे। ऐसा नहीं कि इसको 1 दे दिए तो इसको 2 दे दिए, ये एक ही पहले कपलेट का पार्ट है, इसलिए इसको भी 1 और इसको भी 1। उसके बाद अब हम सेकंड लिखेंगे। सेकंड क्या था? पेटल्स का कैरेक्टर था, जिसमें कुछ प्लांट्स में पेटल्स एब्सेंट थे। अब इसका बेस्ट कंट्रास्टिंग क्या हो जाएगा? पेटल्स प्रेजेंट, एब्सेंट हो गया और प्रेजेंट हो गया। पहले का जो पार्ट था वो ये दूसरा था, पहला कपलेट और ये दूसरा कपलेट। अब पहला कपलेट हम जब लिखेंगे तो यहाँ पर डॉटेड करके आप सेकंड नंबर डाल देंगे। सेकंड नंबर डाल देंगे तो कहाँ पर हमें पढ़ना है? फिर यहाँ से फिर लिखना है, या अगर आप फ्लोरा लिए हुए हैं तो आप इसमें फिर कहाँ से इसका कैरेक्टर पढ़ेंगे? यहाँ से पढ़ेंगे। पेटल्स एब्सेंट, देख लेंगे प्लांट में, जहां एब्सेंट होगा वहां ऐसे 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 डॉटेड करके आप क्या करेंगे? पेटल्स एब्सेंट। हाँ, एक मिनट। अब ये दूसरा हो गया, दूसरे के बाद ये दो, एक कपलेट हो गया, दूसरा कपलेट हो गया। अब तीसरा कपलेट होगा तो तीसरे कपलेट के लिए हमें रेफरेंस यहां पर देना पड़ेगा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 3। अब तीसरा वाला जो है वो हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। थर्ड क्या है? पेटल्स एब्सेंट है, यानी कि हम किसका कैरेक्टर अब लेंगे? सेपल का कैरेक्टर लेंगे। तो सेपल्स यूजुअली 4 और इनवॉल्यूकर एब्सेंट। इनवॉल्यूकर एब्सेंट, ये पहला लीड हो गया। अब इसका दूसरा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिखेंगे, नंबरिंग बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा? सेपल्स यूजुअली कितना? 5 और इनवॉल्यूकर यहाँ एब्सेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। इनवॉल्यूकर प्रेजेंट। तो ये 3 कपलेट हमने लिख लिए। अब पेटल्स प्रेजेंट जहां पर थे वहां पर पाया गया था क्या? रेननकुलस। इसमें पेटल्स प्रेजेंट होते हैं तो रेननकुलस हो गया। जब सेपल का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया उसके बाद हम क्या लिखेंगे? कैरेक्टर स्पर का कैरेक्टर लिखेंगे। तो चौथा जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तब चौथा जो कपलेट होगा वो
क्लेमेंटिस में 4 सेपल्स और इनवॉल्वर एब्सेंट। सेपल 5 पाए जा रहे हैं, इनवॉल्वर प्रेजेंट है, यानी कि किसमें? एनिमोन में। उसके बाद स्पर का कैरेक्टर, स्पर्स 5 है, फ्लावर रेगुलर है, एक्वेलेजिया में। स्पर 1 है, फ्लावर इरेगुलर का, किसमें? डेल्फिनियम। So in this way we have identified all the 5 genera of family Ranunculaceae on the basis of both indented key and bracket key. The next one is multi-access key. Multi-access key. Multi-access key is a key in which identification of plants is based or done by computers. So in this way we have completed the topic flora and key. In the next video we will meet with a new topic. Till then, thank you and bye bye.